परम पावन जी का आगमन हो गया है। Good morning. गुड मॉर्निंग। Namaste. Your Holiness. नमस्ते। Okay. Tashi Dela, Your Holiness, and warmest greetings from your chela and prostration. तो परम पावन जी आपके चेलाओं की तरफ से आपको नमस्कार। For who you are, all that you do, and that you are with us this morning. We are all deeply blessed and privileged. और हम लोग बड़ी सौभाग्यशाली हैं। I'm going to ask requests Mr. N.N. Vora, the Life Trustee and President of the India International Center in Delhi, with whom the foundation is collaborating, to set up this engagement with you on a subject very dear to your heart, the Nalanda tradition, and Ahimsa and Karuna. Mr. Vora is a distinguished a civil servant. The IIC has provided a valuable, intellectually engaged space for a discourse on a diversity of issues, and certainly on Tibet. He's had a long and distinguished career in the administrative service as Principal Secretary to the Prime Minister, Governor of Jammu and Kashmir, etc., etc. I could give him a long introduction, but it's over to you, Mr. Vora, for a formal welcome to His Holiness. तो मैं बोरा जी से अनुरोध करता हूँ कि आप परम पावन जी का स्वागत करें। तो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और परम पावन जी पुनः आपको, जैसा कि राजीव ने अभी कहा कि हम लोग एक बहुत ही बड़ी एक संतुष्टि के लिए यहाँ पर मिल रहे हैं। And we are extremely grateful to His Holiness for having agreed to speak to us on a subject और परम पावन जी ने हम लोगों को what is happening in the world today. In welcoming His Holiness, I have great pleasure in being joined by the senior most active member of the IIC, Falina Rahman. तो अभी जो फलीना रहमान आईआईसी की सबसे महत्वपूर्ण और सीनियर जो मेंबर हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी एक मेंबर हैं। Making use of a great experience and knowledge before I went to Kashmir. I also like to particularly mention Dr. Saida Hamid, whom I've had और मैं सईदा for many years. के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि मैं इनको बहुत बरसों से इनको जानता हूँ। और My three other colleagues, I particularly like to mention Shiv Shankar और मेरे और आत्मीय मित्र श्यामशंकर मेनन, जिन्होंने मैंने बहुत बरसों तक साथ में कार्य किया है और आईआईसी में एक आजीवन सदस्य हैं और भारत में जो एक फॉरेन जो सेक्रेटरी रहे हैं। On a personal note, श्याम सरन जी के बारे में, on the very day I joined service, 61 years और परम पावन जी मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने 61 वर्ष पहले जब सेवा में आया तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उस समय उन्होंने उस समय देश को बताया कि आप भारत आ रहे हैं। और जब मैंने अपनी ट्रेनिंग जो समाप्त कर ली, फिर उस समय मैं कांगड़ा में मैं पोस्टेड हुआ था और डिस्ट्रिक्ट द्वारकाटर धर्मशाला था। और उस समय आप धर्मशाला में बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे और जो सिविल सर्विसेज के लोग थे वो आपके दर्शन का आयोजन कराते थे। लोगों को जो लोग आते थे मिलने उनमें व्यवस्था करते थे। तो मैं भी एक प्रकार से लाइजन ऑफिस भी रहा हूँ और आपके जो सेटलमेंट बने तो लगभग 2 हफ्ते तक मेरी वहाँ पर ड्यूटी लगी थी। तो जब मेरी सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में जब कार्य किया तो मैंने बहुत सारे आपसे एडवाइस भी प्राप्त किए, बहुत सारे आपके मार्गदर्शन प्राप्त किए। और जो उस समय शिव शंकर मेमन जी बहुत यंग थे, युवा थे,
to get his तो advice हम on लोग certain matters. परम Very, पावन very जी से civil. अक्सर मिला करते थे और Subsequently, I have आपसे been एडवाइस लिया करते थे। deployed in Jammu and Kashmir, as Rajiv just फिर mentioned. उसके बाद And जो during the 10 years, राजीव I ने had the जैसा privilege, कहा your कि जम्मू एंड holiness, कश्मीर में of every मेरी year पोस्टिंग हुई, paying homage and meeting you and getting your blessings तो उस and your समय हर stays in वर्ष Ladakh. जब आप लद्दाख आते थे तो And हर now, साल of मैं course, आपसे मिलता था, in the आपको प्रणाम IAC, करता you था। were our very, very special guest और for उस the past over तो 40 उसके years. अलावा आप जो So not to आईआईसी extend में my के आप मेहमान हैं, speech पिछले 40 too सालों extensively, से I would आप conclude इसके by मेहमान once रहे। again extending a very तो warm मैं welcome to बहुत ज़्यादा you नहीं बोलना and चाहता thanking हूँ, you तो सभी also लोगों को मैं graciously धन्यवाद देता हूँ और to स्वागत करता हूँ speak कि to आप us लोग इसमें on a आए। theme or और परम subject पावन जी which आपका which बहुत बहुत advised me धन्यवाद is कि of आप great importance in हम लोगों को today's अवसर world. दिया। Thank तो you very आज much, जो Guruji. आप Thank जो you. वक्तव्य देने के लिए आपने अनुमति की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, Yes, Your Holiness. भारत की indeed. जो विरासत करना और अहिंसा, उसके बारे में I आज was very happy चर्चा है। uh, तो वास्तव में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है to कि hold आज this talk जो with इस my टॉक के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। was a long time my friend. तो मेरे लंबे समय से मित्र As a जो matter of आज fact, हमारे सामने now last उपस्थित हैं, उनके 61 साथ years, बातचीत करने के लिए 60, मैं बहुत ही 61 years, खुशी महसूस कर रहा is हूँ। India तो पिछले my home. 61 वर्षों से भारत मेरा एक प्रकार से घर रहा है, मेरा घर के As रूप में Prime है। Minister mentioned in, I think UN, the Buddha तो उस जब प्राइम मिनिस्टर ने यूएन में जब कहा था, तो उन्होंने कहा था कि भगवान बुद्ध भारतीय all थे, are ये सत्य बात थी। sort of thinking. Firstly, on the basis of Buddha's teaching. तो जो भी हम लोगों का सोच विचार है, जो ज्ञान है, वो भगवान बुद्ध के ज्ञान से आया हुआ है। और भगवान बुद्ध ने खुद कहा कि हे मेरे जो हमारे जो चेले हैं, उन लोगों को हमारे टीचिंग को आपको विश्वास से नहीं मानना है, श्रद्धा बस नहीं मानना है, उसको आपको एक आपके अनुभव पर जो खरा उतरता है उसको आपको मानने की आवश्यकता है। तो ये बहुत ही वैज्ञानिक तर्क है। Institution, you see, take, I think, the main center of Buddha Dharma. All these तो उसके बाद भारत में अगर आप देखें तो नालंदा का Buddha's sort of advice, जो सेंटर बना था, तो वो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। every Buddha's teaching, और वहाँ पर हर भगवान बुद्ध के जो भी वचन थे, उसको परीक्षण करते थे, तर्क करते थे कि जो भी कहा जा रहा है उसके वजह क्या है, कारण क्या है। must be true. तो ऐसा कभी नहीं कहा नालंदा के विद्वान ने कहा कि जो भी बुद्ध कह रहे हैं वही सत्य है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तो हमेशा उन्होंने तर्क पर जा कर के कसौटी पर उनको खरा उतारा। तो कसौटी पर खरा उतारने के बाद ही चीज़ों को उन्होंने समझा। The Madhyamaka philosophy, तो आप वहाँ पर बौद्ध धर्म में दर्शन की बात करें, कुछ जो चित्तमात्रिक, माध्यमिक, व्यावसायिक, स्वतांत्रिक, जो 4 दार्शनिक सिद्धांत हैं, eventually you see different school of thought. तो ये अलग अलग विचार हैं, अलग अलग जो दर्शन हैं। Although we are Tibetan, तो हालांकि हम लोग तिब्बती हैं, तो हमारा जो चेहरा है आपकी तरह से नहीं है। लंबी नाक है, जैसे कि आपकी लंबी नाक है उस तरह से हमारी नहीं है। लेकिन मानसिक रूप से देखा जाए तो हम भारतीय हैं। 8th century. तो 8वीं शताब्दी से आप देखें और इससे पहले जाएं, आप 7वीं शताब्दी में अगर आप जाते हैं तो तिब्बत के जो पहले जो राजा जिन्होंने कि चीनी महल जो रानी थी उनके साथ जो शादी की, तो वो थंग जो वंश था उसके बहुत ही करीब थे।
prefer फिर उसके बाद उन्होंने, जो राजा थे, उन्होंने भारत के, study Chinese language तो उन्होंने कहा कि चाइनीज भाषा पढ़ने के side अच्छा होगा। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि अपनी मूल जो अपनी जो लिपि है उसका निर्माण किया जाए, उसका विकास किया जाए। तो उन्होंने देवनागरी से काखा गांगा चाचा झाया, तो इसका इन्होंने विकास किया। तो जो चाइनीज करेक्टरिस्टिक या लिपि है उसको उन्होंने नहीं स्वीकारा। फिर आप 8वीं शताब्दी में जब आ जाते हैं और उसके इतिहास को देखें कि तिब्बत के राजा very close link with Chinese Buddhist और उनका जो संबंध है want to वो बहुत सारा जो बौद्धों के साथ अच्छा रहा है। from Nalanda. तो उन्होंने जो बौद्ध धर्म को जो चीन में आया वो डायरेक्ट नालंदा से आया। Logician माफ़ करना, तिब्बत में जो आया वो 8वीं शताब्दी में आया। तो आप 8वीं शताब्दी में अगर आप देखें कि जो उस समय के प्रकांड विद्वान आचार्य संरक्षित थे, तो उनको तिब्बत के राजा ने तिब्बत में बुलाया। तो जब वो लासा आए, संतरक्षित जी लासा पहुँचे, तो उन्होंने तिब्बत के महाराज को कहा कि उन्होंने कहा कि जब आपकी अपनी भाषा है, आपकी अपनी लिपि है, तो आपको संस्कृत पढ़ने के बजाय आपको अनुवाद करना चाहिए, आपको अपनी भाषा में इनका अनुवाद करना चाहिए। तो कुछ जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान लोगों ने मुझसे कहा कि हालांकि वो काफ़ी संतरक्षित जी तो काफ़ी वृद्ध विद्वान थे, काफ़ी उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनसे पढ़ा, हम लोगों ने कहा थे, लोगों ने उनसे पढ़ा, उनके रचनाओं को भी आज भी पढ़ते आ रहे हैं। some attention study और उन्होंने खुद वो जो है तिब्बती भाषा को पढ़ने के एक प्रकार से रुचि दिखाई, उसका भी उन्होंने अध्ययन किया। now eventually we Tibetan have 100 volumes about तो अभी आप देखें कि तो तिब्बती भाषाओं में लगभग भगवान बुद्ध के जो त्रिपिटक हैं वो उनकी संख्या, उन पोथियों की संख्या कोई लगभग 100 के आसपास हैं। and Vinaya तो इनका संस्कृत से अनुवाद हुआ, पाली परंपरा से भी कुछ ग्रंथ लिए गए। जो विनय हैं वो भी भगवान बुद्ध के मूल वचन हैं, उनका भी अनुवाद हुआ। Nagarjuna फिर उसके बाद नालंदा के विद्वान जैसे कि नागार्जुन और आर्यदेव Arya Asanga. और आर्य संघ। You see, the Nalanda masters were writing तो नालंदा के जो विद्वान हैं उनकी logic, रचनाएं, philosophy, psychology. तो उनमें जो तर्क थे, मनोविज्ञान थे So all और विनय थे, about 300, no, तो लगभग इन सभी को देखा जाए तो दोनों को मिलाकर के जो टीकाएं थीं तो 200 के आसपास उनकी संख्या होती है। तो कुल मिलाकर सूत्र और शास्त्र 300 के आसपास जो पोथियां हैं उनका जो संस्कृत से और पाली परंपरा से तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया। from childhood. तो मैं अपने आप का भी उदाहरण देता हूँ कि बचपन से हम लोगों ने और मैंने भी इन ग्रंथों को पढ़ा है। वो जो मूल ग्रंथ होते थे तो हम लोग उनको कंठस्थ कर लेते थे, याद कर लेते थे। I think 6-7 year old already तो started. मैं भी 6 वर्ष का था तब से ही मैंने भी इनको कंठस्थ करना प्रारंभ कर दिया, उनको याद करना प्रारंभ किया था। So we Tibetan, और हम तिब्बती लोग जो हैं all our और mind जो filled तो हम लोगों का जो भी जो ज्ञान है Indian वो नालंदा की विचार हैं, सिद्धांत हैं, when उससे भरा पड़ा है। this I'm saying, वहाँ से हम लोगों ने उसको प्राप्त किया है। survival तो आजकल मैं यही कहता हूँ कि मेरा जो शरीर है वो भी भारत की दाल, चपाती, रोटी इससे बना हुआ है। तो मानसिक रूप से देखा जाए, शारीरिक रूप से देखा जाए, इन दोनों को तरफ से देखा जाए तो मैं भारतीय पुत्र मानता हूँ, भारत का नागरिक हूँ, ऐसा मैं अपने आप को कहता हूँ। guest of Indian government. और दूसरी बात, भारत का सबसे लंबा अतिथि हूँ, सबसे लंबे समय तक रहने वाला मैं अतिथि हूँ, मेहमान हूँ। Very, very happy. Very happy. तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप लोगों के समक्ष अपनी बात रख रहा हूँ।
जो कि मेरे भारतीय मित्र हैं, लंबे समय से मित्र हैं, You may already know, as a और शायद आपको जानकारी होगी 87-year-old, कि मैं अभी लग 87 वर्ष के आसपास का हो गया हूँ। तो मेरे 4 प्रतिबद्धताएं हैं, 4 कमिटमेंट्स हैं। तो पहले जो कमिटमेंट है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं भी 7 अरब के आसपास जो लोग हैं उनमें से एक हूँ। 1000-year-old India's tradition of Karuna. तो हम मनुष्यों की जो मनुष्यों को भारत की हजारों वर्ष प्राचीन परंपरा जो करुणा है उसकी आवश्यकता है, अहिंसा की आवश्यकता है, और इसकी मानवता को वास्तविक में ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है। तो मेरी ये पहली प्रतिबद्धता बनती है कि किस प्रकार से जो भारत के जो प्राचीन जो ज्ञान है, अहिंसा है, करुणा है, और ये जो मनुष्य को जिनकी आवश्यकता है। Not necessarily as a religious practice, but तो दूसरी बात जो भारत की जो सेकुलर धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था, ये भी ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं है इसके लिए, ये नहीं है कि हमें किसी एक विशेष धर्म को देखना चाहिए। human being तो आप पिछले killing each other. कई शताब्दियों के And previous पिछले शताब्दियों को देखें कि लोग एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं। पिछली शताब्दियों में देखें कि प्रथम विश्व युद्ध को देखें, द्वितीय को देखें, तो इसमें बहुत ज़्यादा हत्याएं हुई हैं, लोगों का पर अत्याचार हुए हैं। तो हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग एक ही मनुष्य हैं, समान मनुष्य हैं। फिर हम लोग को इसी ग्रह पर रहने की आवश्यकता है, पृथ्वी पर रहने की आवश्यकता है। फिर भी हम लोग आपस में झगड़ते हैं और इस प्रकार के बुरे emphasis एक प्रकार दूसरे की हत्या करते हैं। तो हमें लोगों basically we are same physically, mentally, so we are same. So now today's reality, Easterner depend Westerner, Western depend East, similarly North and South. So now, particularly global economy, now no national boundary. So now तो इसके लिए कोई हमारी जो राष्ट्रीय कोई बाउंड्री हो या फिर इसमें कोई हम लोग में अंतर हो, ऐसा नहीं है। हम लोग सभी समान जो पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, इस पृथ्वी पर रहने वाले हम सभी लोग समान हैं। human being. तो मेरा यही प्रयास रहता है कि जो 7 अरब के आसपास लोग हैं I am Buddhist. उनको Harmony, एक प्रमोट कर सकूं। very important. दूसरी बात, मैं एक बौद्ध हूँ, तो बौद्ध होने के नाते मैं मानता हूँ कि धर्मों के बीच सद्भाव रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भारत को देखिए, Live together. तो भारत में विभिन्न परंपराएं, जो बड़ी बड़ी परंपराएं हैं, वो सारे के सारे भारत में साथ साथ रहती हैं। Indian Muslim. तो भारत की परंपरा की वजह से आप भारत में देखें कि भारतीय जो मुस्लिम लोग हैं, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, तो उन्होंने कभी मुझसे ऐसा नहीं कहा, Relations between Shia and तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि उनका शिया और सुन्नी के साथ बहुत ही ख़राब संबंध, ऐसा कभी मैंने नहीं सुना। लेकिन दूसरे देशों को अगर देखोगे, वहाँ के लोगों देशों में देखोगे, तो शिया और सुन्नी आपस में झगड़े करते हैं। और भारत में जबकि अन्य परंपराएं, अन्य धर्म साथ साथ रहते हैं। only nation where तो भारत एकमात्र राष्ट्र है जहाँ पर दुनिया की सभी परंपराओं के लोग, सभी धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। tradition, but from तो भारत की जो मूल, जो भारत में पैदा जो धर्म हुए वो तो हैं ही हैं, उसके अलावा जो भारत से बाहर से आए हुए यहूदी धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियन, पारसी, ये सारे के सारे बाहर से आए हुए हैं, फिर भी बड़े सामंजस्य के साथ, शांति के साथ एक साथ रहते हैं। example, religious harmony. तो भारत एक प्रकार से उदाहरण है कि यहाँ पर जो सर्वधर्म संभाव है, धर्मों के बीच जो सद्भाव है वो संभव है, साथ रह सकते हैं। ये भारत अपने आप में एक उदाहरण है। One my commitment is try to तो मेरी ये पहली प्रतिबद्धता यही रहती है कि जैसे दूसरी प्रतिबद्धता कि धर्मों के बीच सद्भाव बने। major religious tradition. It's a different tradition,
different philosophy. Some say there's तो अलग अलग परंपराओं के अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। कुछ कहते हैं कि ईश्वर होते हैं, कुछ जो कि सृष्टिकर्ता को मानते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। thinking. There are differences. तो जहाँ तक दर्शन के बारे में बात करें, सोच विचार के बारे में बात करें, Passion. तो उसमें अंतर होते हैं, लेकिन सभी के जो संदेश हैं वो समान होते हैं। सभी Tolerance. जो कि Discipline. जो करुणा, सहिष्णुता, भाईचारा, क्षमा इत्यादि का संदेश देते हैं। So, तो ये सभी धर्मों में ये जो सिद्धांत हैं व्याप्त हैं। तो ये आसान बात भी है। so all तो religions धर्म हैं वो मनुष्यों के लिए होते हैं, मनुष्यों के हित के लिए होते हैं। of basic human value. That's human. तो इसलिए जो हमारी जो मानवता है उसको समझना चाहिए। वो करुणा से संभव हो सकते हैं। Without जैसे ही हम पैदा होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, तो बिना अपनी माँ के प्रेम के, उनकी करुणा के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, हमारा जीवन नहीं चल सकता है। तो आज के समय में social animal, कुछ जो वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, और जो भी सामाजिक प्राणी है their own community, तो वो अपने समुदाय के उसकी एक प्रकार से जिम्मेदारी रहती है, वो उसका ध्यान देते हैं। any social आप जानवरों को देखिए, तो आप किसी भी जानवरों को आप देखें, care about their community. So, वो हमेशा एक दूसरे के ध्यान देते हैं, अपनी कम्युनिटी पर ध्यान देते हैं। we individual have to live. तो हम मनुष्य भी उसी प्रकार से एक सामाजिक प्राणी हैं, हमको साथ साथ रहने की आवश्यकता है। So now some scientists say और हमें अपने समाज पर आश्रित होने की आवश्यकता रहती है। sort of sentient being. तो हम लोग ये कर कहा जाए तो हम लोग ज़्यादा करुणाशाली व्यक्ति होते हैं। तो भले ही आप पूर्व जन्म और परजन्म ईश्वर या फिर मानते हैं या न मानते, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें एक प्रेम, करुणा, मैत्री इसकी आवश्यकता है। एक दूसरे के पर निर्भर रहने की ज़रूरत है या रहते हैं। Love, as I mentioned earlier. तो सभी धर्मों का जो मुख्य संदेश होता है वो प्रेम, करुणा, मैत्री का होता है। तो ये धर्म जो भी हैं, I'm trying परंपराएं हैं, वो लोगों की हैं, मनुष्यों के लिए है। तो इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि जो धर्मों के बीच सद्भाव बने। तो मेरी फिर तीसरी प्रतिबद्धता जो है कि मैं एक तिब्बती हूँ, तो तिब्बती लोग मेरे में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, मुझे बहुत बड़ी एक उम्मीद भी रखते हैं। political matter. तो जहाँ तक राजनीतिक मामलों को अगर देखा जाए तो मैंने 2011 I तो totally 2011 से मैं पूर्ण रूप से responsibility. जो राजनीतिक हमारी जिम्मेदारी है उससे मैं एक प्रकार से निवृत्त हो गया हूँ, रिटायर हो गया हूँ। Elected political leadership. तो हम लोगों ने जो इलेक्टेड लीडरशिप को चुना है, तो इसमें हमारे जो नेतागण हैं वो ध्यान देते हैं, उसको जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। Firstly, तो मेरी मुख्य जिम्मेदारी बनती है तिब्बत के लेकर के, और उसमें भी जो तिब्बत का पर्यावरण है तो पर्यावरण को ध्यान देना। तो कुछ वैज्ञानिक लोग मान रहे हैं, कह रहे हैं कि जो वैश्विक ताप है वो बढ़ता चला जा रहा है, global warming really reach the और आने वाले कुछ दशकों में जहाँ तक ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो वो धीरे इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जो तिब्बत की जो नदियाँ हैं, बहुत से जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, वे एक प्रकार से सूख जाएंगी। जैसे कि आप अफ़गानिस्तान को देखें तो हम लोग के जो पड़ोसी थे देश है, so we can तो हम लोग काफ़ी नज़दीक थे, अभी भी हैं। और जब मैं देखता था, जब जहाज़ से जाता था तो नीचे देखता था कि वहाँ पर बड़ी बड़ी झीलें हुआ करती थीं, बड़ी बड़ी नदियाँ होती थीं। तो अब वो बहुत से सिकुड़ गई हैं, सूख गई हैं, और जो नदियाँ बड़ी बड़ी होती हैं वो एक प्रकार से छोटे झरने के रूप में दिखाई देते हैं, एक नाली के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का, पर्यावरण का इतना बड़ा फर्क पड़ा है। तो हमें पर्यावरण के, जो तिब्बत की पर्यावरण, उस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, और हम लोग, मेरा एक उस पर चिंतन भी है। तो दूसरी बात इसी के साथ है कि तिब्बत की जो संस्कृति है, तो भारत में जो तिब्बत में बौद्ध धर्म आने से पहले हमारा जो संस्कृति थी वो बहुत ही सरल सहज थी। जैसे कि आप मंगोलियन को देखें
तो उनके भी जीवन बड़े आसान थे, सरल थे। फिर उसके बाद जब बौद्ध धर्म तिब्बत में गया many Tibetan और तो उसके बाद बहुत सारे जो तिब्बती लोग study तिब्बती लोग भारत में आए Indian sort of Buddhist. और तिब्बत भारत में आकर के जो बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, विभिन्न विभिन्न जगहों से अध्ययन किया, नालंदा से अध्ययन किया, तक्षशिला से अध्ययन किया। तो अलग अलग जगह पर रह कर के उन्होंने बौद्ध धर्म को सीखा और विक्रमशिला में भी कुछ लोगों ने अध्ययन किया। So, you see now, it's quite clear. तो ये बात एक प्रकार से स्पष्ट है कि तिब्बत की जो धर्म परंपरा वो बहुत ही तार्किक है, Myself, प्रामाणिक है। my own तो इसलिए I have मैं अपने अनुभव के हिसाब से कहता हूँ, with modern scientists. तो मेरे जो संबंध है, मेरा जो संबंध है तो आधुनिक विज्ञान के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। तो हम लोग केवल श्रद्धा बस नहीं मानते हैं, हम लोग हमेशा उस पर परीक्षण करते हैं, तर्क करते हैं। My own experience is तो मैं अपने अनुभव को कहूँ तो एक दूसरे से इससे सीखने को मिलता है, also subject एक दूसरे से सीख सकते हैं। in science and तो जो विषय institution there. जैसे कि विज्ञान के बारे में कहे जाते हैं, So now we have, you see, new subject about, you see, scientific or a certain field. तो आज हमारे जो मठों में जो वैज्ञानिक तरीके हैं, जो विज्ञान है उसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं। तो एक प्रकार से वैज्ञानिकों के साथ में एक संबंध है, वो बहुत ही लाभदायक है, हमारे अध्ययन के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो तिब्बती जो बौद्ध परंपरा है वो काफ़ी एक प्रकार से देखा जाए अमीर है, काफ़ी अच्छी है। तो मैं कभी कभी भारतीय अपने मित्रों को मजाक रूप में कहता हूँ कि परंपरागत रूप से आप भारतीय लोग मेरे गुरु होते थे, लेकिन आज वर्तमान के समय में ज़रूर नहीं है कि आप हमारे गुरु हों। तो हम लोग परंपरागत तौर से भारतीयों के चेला हुआ करते थे, लेकिन अब जो ट्रेडिशनल परंपरागत चेला थे अब वो गुरु बन रहे हैं, एक प्रकार से गुरु बन गए हैं। तो मैं मजाक के रूप में कहता हूँ। Responsibility. तो मेरा एक प्रकार से जो जिम्मेदारी भी बनती है कि इस जो इतनी जो प्राचीन जो विद्या है, इतनी प्राचीन व्यवस्था है भारत से जो आई हुई है, उसका रख रखाव हो सके। तो ये मेरी तीसरी जिम्मेदारी भी बनती है। Knowledge come from India. तो फिर चौथी मेरी एक प्रतिबद्धता है कि ये सारे के सारे ज्ञान भारत से आए हुए हैं। Much emphasis about the materialist. तो आज materialist. जो लोग हैं वो ज़्यादातर So now मेटीरियल अर्थात देखा जाए कि Indian knowledge about mind, about psychology, these जो कि revive. तो भारत की जो व्यवस्था है, साइकोलॉजी है, India मनोविज्ञान है, इसको बनाना चाहिए। and also और भारत में ये क्षमता है opportunity कि इसको combine modern knowledge एक प्रकार से विकसित कर सकते हैं। और भारत में क्षमता है कि प्राचीन विद्या और आधुनिक विद्या इन दोनों को साथ में ले सकते हैं। जैसे कि प्राचीन विद्या के बारे में बात करें, अहिंसा, करुणा, मैत्री, तो हालांकि ये 3000 वर्ष प्राचीन ये परंपरा है, लेकिन फिर भी आप देखो भारत में कि समता और विपश्यना का जो दर्शन था वो भारत में पैदा हो चुका था। now modern India तो ये प्राचीन भारतीय ज्ञान है। तो आज भारत जो मॉडर्न समय है, आधुनिक समय है, उसमें इनको रखना चाहिए, इसको जोड़ना चाहिए, जोड़ने की कोशिश करना चाहिए। and ancient Indian knowledge about mind, about emotion. These days, I'm used something like, you see, hygiene of physical. तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस प्रकार से शरीर को स्वस्थ रखने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से मन को भी स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए जो आधुनिक जो अध्ययन है, शिक्षा है, वो पर्याप्त है, ये ठीक है। Nothing. So, तो hygiene of
लेकिन मन को शुद्ध करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए जो मॉडर्न शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा, उसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि भारत की जो परंपरा है अहिंसा, करुणा, उस पर आधारित है। तो इन चीज़ों को, जो प्राचीन विद्या है, इनको जोड़ना चाहिए, साथ रखना चाहिए। तो हमारे मन और शरीर दोनों स्वस्थ होने चाहिए। तो ये मेरी चौथी प्रतिबद्धता है कि जो भारत की प्राचीन विद्याएं हैं उसको हमको रिवाइव करने की आवश्यकता है, उसको पुनरुद्धार करने की आवश्यकता है, जिसको हम तिब्बती लोगों ने हजारों वर्ष तक उसका रख रखाव करके रखा है। तो दोनों को, आधुनिक और प्राचीन दोनों जो विद्या, उनको साथ साथ रहना चाहिए। तो आप पिछली शताब्दी में देखें कि महात्मा गांधी जी ने दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया। तो दुनिया के बहुत सारे लोग, तो गांधी जी के जो अहिंसा का सिद्धांत है, तो उनके इस सिद्धांत पर बहुत सारे लोग चले, उसको माना। जैसे कि नेल्सन मंडेला जी को देखें, मार्टिन लूथर किंग को देखें, तो उन्होंने भी महात्मा गांधी जी को अपनाया। If you combine modern education and ancient Indian education about mind, then you can. तो अगर आप प्राचीन विद्या और आधुनिक विद्या को, अगर दोनों को साथ रखते हो, अपने भावनाओं को, अपने जो हमारे जो ज्ञान है, जो हमारे जो मनोविज्ञान, इनको अगर साथ जोड़ते, दुनिया के लोगों को अगर आप दिखाते हैं, वो बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, अपने विचारों को समझ सकते हैं, और उनको भी एक धर्मनिरपेक्ष रूप में रह करके। तो जो धर्म की बात है, धर्म एक व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं, आपके व्यक्तिगत इशू होते हैं। तो दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसको एक सुखद मन मिले, सुखद चित्त बने, सुखद विश्व हो। तो ये मेरी एक प्रकार से देखा जाए तो चौथी प्रतिबद्धता है कि जो प्राचीन भारतीय विद्या, उसका पुनरुद्धार हो सके, आधुनिक भारत में हो सके। तो अब कुछ प्रश्न आप पूछें। तो मैं मिस्टर शिव शंकर मेनन जी को कहना चाहता हूं कि जो आपके साथ साथ लगभग 5 साल तक कार्य किया है, आपसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और पूर्व में जो भारत के विदेश सचिव भी रहे हैं। तो परम पावन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हम लोगों को विचार दिया। तो मेरा प्रश्न है कि आज के समय में करुणा, मैत्री, अहिंसा, इसको राजनीति में कैसे लागू कर सकते हैं, और ख़ास करके जो विश्व की राजनीति है और जो जिसमें उथल पुथल मची हुई है, उसमें कैसे सम्मिलित कर सकते हैं। On this planet, I think basically those, or say they, more knowledgeable people, I think really fed up about. तो मुझे लग रहा है कि इस पृथ्वी पर लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो मानवता के जो मूल्य हैं उसको भूल चुके हैं, और वो जो मानवता एकता के बारे में बात करना भूल गए हैं। तो उसमें आज धर्म की बातें जो होने लगी, मेरा धर्म, उनका धर्म, ऐसी भावना आ गई है। तो आज के जो विश्व के जो विचारधारा लोग हैं, जो चिंतक लोग हैं, वो एक प्रकार से इससे परे जा रहे हैं। तो दुनिया में चीज़ों को देखें या परिस्थितियों को देखें, वो बदलती हैं, बदल रही हैं। Way of thinking previous century and this century, I think much change, including. तो आप पिछली शताब्दी को देखें और अभी की शताब्दी को देखें, तो उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और जो चिंतक लोग हैं और जो जिस विचारधारा के लोग हैं, तो पिछले समय में जो लोगों की विचारधाराएं थी, संकुचित विचारधारा, उससे एक प्रकार से ऊब चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं, लोग एक प्रकार से दुखी हो रहे हैं।
So now तो India लोग अभी एक प्रकार से चिंतन भी कर रहे हैं। or ability तो भारत में एक प्रकार से जो क्षमता है और ऐसा कर सकते हैं, दूसरों को भी एक प्रकार से मार्ग दिखा सकते हैं। it is, I mean, not nice saying by myself. I तो think मैं अपने आप से कहूँ loves तो वो me. अच्छा नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। So all this knowledge actually come from India. तो जो भी मैं कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ये सारा का सारा जो मेरा ज्ञान है These वो भारत से आया हुआ है। Tibetan Samba. तो ये जो ज्ञान है, आप साथ तो जानते ही हो कि जो हम लोग चंपा इत्यादि खाते हैं, Uh, तो ये जो ज्ञान जो है, जहाँ की बात करें की जाए तो भारत से आया हुआ है। India, now, unfortunately, as I mentioned earlier, I think since British introduced education according तो भारत में की जो शिक्षा प्रणाली है, तो उन्होंने so भारत की that शिक्षा means प्रणाली को एक प्रकार sometimes से I दिया also है। have little sort of तो उन्होंने अपने criticism अपने स्टाइल से when दिया India होगा। तो become मैं कभी कभी independent, इसकी that थोड़ी is सी निंदा भी करता 1923, हूँ। तो and जब these भारत all स्वतंत्र हुआ, great तो उस समय महात्मा गांधी leaders और भी लोग, बहुत avoid बड़े बड़े education. नेता जो थे, तो उस समय इनको जो शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए था, They revived जो शिक्षा प्रणाली है, ancient Indian उसको ध्यान देना चाहिए था। knowledge about mind. और अपने जो Because प्राचीन भारतीय विद्या these है, things जो now जो should करुणा का जो revive सिद्धांत है, in this उसको country. रिवाइव करना चाहिए था। और अभी भी इसको पुनरुद्धार करने की आवश्यकता है। I fully committed. So therefore, तो इसके लिए मैं पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूँ। Kaza. पूर्ण रूप से मैं इसमें So इसके since लिए I think world सहमत हूँ। really fed up about existing sort of way of thinking, education. So तो आज के जो जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है, उसमें बहुत सारे लोग एक प्रकार से दूर जा रहे हैं। education, new way of thinking. और ज़्यादातर जो नए शिक्षा के जो नए क्षेत्र हैं, नए तरीके हैं, उसको खोज रहे हैं। This is my feeling. तो भारत में एक क्षमता है, ऐसे कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। Use the word Nalanda, Nalanda tradition, then immediately you see get the impression Buddhist tradition. तो जब नालंदा की परंपरा को पढ़ते हैं, तो मैं ऐसा नहीं है कि उसको एक बौद्ध परंपरा के रूप में कहता हूँ, ऐसा नहीं है। उसको मैं भारतीय परंपरा के बारे में कहता हूँ, भारतीय विद्या के रूप में कहता हूँ कि जितने भी Indian tradition. जो विद्वान हुए वो भारतीय लोग थे। तो इसको मैं भारतीय परंपरा नाम देना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो अहिंसा और करुणा का जो सिद्धांत हैं, Can utilize. तो इसको विश्व एक उपयोग कर सकता है, विश्व इसको Your इसका Holiness, इससे लाभ ले next सकता question है। is from Mr. Fali तो अगला Nariman, प्रश्न India's मिस्टर preeminent फली jurist, नरीमन, and his तो very strong भारत के connection with you was he accompanied you on तो your जिनका Pray for आपके साथ India साथ बहुत सारा journey अच्छा to संपर्क places of रहा है। worship and pilgrimage of different traditions, one of your और great अलग अलग passions. जगह पर जब Mr. आप Nariman, गए तो your पिलग्रिमेज किया, तो उस समय भी आपके साथ थे। Please unmute yourself, Mr. Nariman. Yeah. Yeah. Thank you. Your Holiness, in that heartwarming book of joy, तो आपकी जो परम पावन जी, आपकी जो पुस्तक जो बुक ऑफ जॉय, तो इसमें आप दो लोग जो आध्यात्मिक गुरु, जैसे परम पावन दलाई लामा और देशमान टुटू, तो आप दोनों का कन्वर्सेशन है, उस जो किताब बनी है, और उसमें कहा गया है कि आप लोग कई घंटों तक प्रार्थना करते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि परम पावन जी के जो प्रार्थनाएं हैं, इसका वास्तविक लाभ क्या है? हम जो मानव जीवन है उसमें क्या लाभ है, प्रार्थनाओं का क्या लाभ है, ये मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। I think prayer useful तो मैं मानता हूँ कि जो प्रार्थनाएं हैं on the basis वो of लाभदायक person होती who हैं, have some वो faith. Then prayer तो very good. उसके लिए होती हैं जो श्रद्धावान है।
श्रद्धावान व्यक्ति के लिए प्रार्थनाएं तो ठीक होती हैं, लाभदायक होती हैं। nothing to do with तो जैसा कि मैं कहता हूँ, अगर धर्मनिरपेक्ष रूप से अगर आप रहते हो तो उसमें धर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो वहाँ पर कोई प्रार्थना है वो भी इतनी ज़्यादा लाभदायक नहीं होती हैं। wisdom. तो मुख्य रूप से हमें अपने Analyze. चिंतन करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। Get the conviction. उसके बाद आप जाकर के उस सत्यता की तरफ जा सकते हैं, अहिंसा की तरफ जा सकते हैं, करुणा की तरफ जा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे सुखद जीवन के लिए, सुखद मानवता के लिए, सुखद विश्व के लिए, ये जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। About तो next ये- life. तो हम अपने पूर्व जन्म, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में सोचने की इतनी ज़रूरत नहीं है। यही कोशिश करनी चाहिए कि हम किस प्रकार से विश्व को शांत बना सकते हैं। और एक सुखद या शांतमय विश्व को अगर बनाना चाहते हैं तो उससे पहले अपने आप में अपने का हृदय चित्त वो सुखद होना चाहिए। तो ये भारत का करुणा, मैत्री, अहिंसा ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है और ये शिक्षा के द्वारा संभव हो सकता है। Inner peace. So that's more important. इसके द्वारा आप आंतरिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Days and weeks prayer. तो आप अगर प्रार्थनाएं हफ्तों भर तक, दिनों तक, घंटों आप प्रार्थनाएं करें तो उतनी लाभदायक नहीं होगी। रुआ, रुआ। Oh, कहा क्या हम चलेंगे? हाँ बिशप टूटू तो जैसे कि आप इसमें कहा गया है कि जो हमारे मित्र जो बिशप टूटू, अफ्रीका तो मैं उनको जब मैं पहली बार जब अफ्रीका गया था तब से जानता हूँ। यहाँ तक कि उससे भी कहीं पहले मैं जानता हूँ, कई बार उनसे मैं मिला हूँ बिशप टूटू और उनके साथ but we हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। not much sort of emphasis about prayer. So तो उसमें मैंने मतलब बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया है। you see, you believe some higher being. तो प्रार्थना का अर्थ है कि आप किसी जो कि सुप्रीम या कोई बहुत ही श्रेष्ठ हो उसको मानते हों, कोई जैसे ईश्वर को मानने वाले हैं उसको मानते हों। तो जहाँ तक बिशप टूटू की बात करूँ तो मेरे एक अच्छे मित्र हैं जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। ये बहुत ही अच्छे मेरे मित्र हैं। तो एक समय जब कनाडा में पब्लिक मीटिंग थी He very much praised me. तो उन्होंने मेरी एक प्रशंसा की, Then at the प्रशंसा के रूप में कुछ शब्द कहे unfortunately और अंत में कहा कि ये दुर्भाग्यशाली है कि ये व्यक्ति अर्थात परम पावन दलाई लामा क्रिश्चियन नहीं है। very close also there. और तो हम ये मजाक के रूप में कहा, हालांकि हम जो दोनों लोग बहुत ही अच्छे मित्र हैं। Here तो उसके बाद मैंने उनको धर्मशाला बुलाया, also now appear. कुछ दिनों तक वो यहाँ रहे You see, और एक इसकी चर्चा भी हुई, किताब भी लिखी, उनके साथ अच्छे संवाद हुए। he teasing me. He तो एक समय उन्होंने मेरी मजाक उड़ाई। God. तो क्रिश्चियनों के जो ईसाई लोग हैं उनके अनुसार वो ईश्वर को मानते हैं, आप ईश्वर को नहीं मानते हो, आप बुद्धिस्ट हो तो ईश्वर को नहीं मानते हो। Christian practitioner. तो वो एक क्रिश्चियन प्रैक्टिशनर थे, तो वो निश्चित रूप से स्वर्ग जाएंगे। तो दलाई लामा जी जो है कि इसके अतिरिक्त कहीं जाएंगे, उनको स्वर्ग जाने का अवसर नहीं मिलेगा क्योंकि ईश्वर को नहीं मानते हैं। You see, I am non-believer. तो So अगर कहा जाए तो मैं एक प्रकार से ईश्वर को नहीं मानता हूँ, तो शायद मैं नरक में जाऊंगा, ऐसा वो कह रहे थे। so the prayer in ancient time, yes, with faith and तो प्रार्थनाएं जहाँ तक देखी जाए तो अगर श्रद्धा उसके साथ है तो कहीं ना कहीं लाभदायक होती हैं। प्राचीन समय में लोग प्रार्थनाएं करते थे mantra like that. और कुछ मंत्रों का जाप भी करते थे, अभी भी करते हैं। According secular way, I तो आज के समय में देखें, use अगर धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत के हिसाब से देखें properly. तो हमें अपनी जो ज्ञान है, जो हमारी बुद्धि है, उसको अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। Without any question, every sort of the sentient being want peace. Even animal, birds,
कि मनुष्यों को सुख की आवश्यकता है, सुख चाहते हैं। यहाँ तक कि आप देखो जानवरों को, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को, वो सभी लोग चाहते हैं कि उनको सुख मिले। disturbances. कोई नहीं चाहता है कि उनको दुख मिले या परेशानी मिले। Then तो इसलिए अपने basis हमें of प्रज्ञा का happiness उपयोग करने की is आवश्यकता है inner peace. कि जो सुख आ रहा है, जो सुख आता है, वो किस वजह से आता है, कहाँ से आते हैं। तो अगर जहाँ आंतरिक शांति होगी, सुख होगा, तो एक But प्रकार से sometimes, खुशहाली आएगी। frankly speaking, sometimes तो अगर we सत्यता pray के रूप में day and कहें, night, but हम लोग we कभी कभी sometimes दिन live in रात तक fear प्रार्थना करते and हैं, sometimes फिर भी anger. That's हम लोग not very डरे हुए होते हैं, एक healthy. प्रकार से क्रोधित हो जाते हैं। So तो ये now, अच्छी बात नहीं है। आप डरें भी और क्रोधित हों तो ये अच्छी बात नहीं होती है। as here, one sort of example, one my तो एक उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ कि मेरे मित्र scientist, जो कि they want वैज्ञानिक to हैं, spend as a day, about half hour like that, while I sort of carry prayer or meditation. Is it तो that जब मैं scientist? तो मेरे पास आए, तो जब मैं अभ्यास कर रहा था तो लगभग आधा घंटा उन्होंने मेरे साथ बिताया We sit together, and then और later हम लोग फिर साथ साथ this बैठे। person really तो very बाद में उस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्रशंसा की जो मैं ध्यान कर रहा था, जो मैं ध्यान कर रहा था, तो उसकी काफ़ी उन्होंने प्रशंसा की, उससे प्रभावित हुए। expressed since that period, his तो whole उसके life बाद से changed. जो उस व्यक्ति ने कहा कि उस क्षण के बाद मेरा पूरा जीवन बदल गया। So I feel most important is use human intelligence. तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है As a social कि animal, आपको heart जो आपकी जो प्रज्ञा है combine उसका human उपयोग करना intelligence चाहिए, and आपकी जो human मानवता है उसका भी उपयोग करना चाहिए, compassion combine. That's the और करुणा को अगर साथ साथ जोड़ करके चलते हैं basis of तो all बहुत ही religion. महत्वपूर्ण बात होती है। और ये सभी धर्मों का एक प्रकार से आधार है, करुणा सभी Your धर्मों Holiness, का आधार है। the next question is from तो परम बाबा जी Professor of अगला History and प्रश्न, Politics. तो As a public प्रोफेसर intellectual हिस्ट्री and के writer, he has और campaigned and supported the agendas of Your Holiness. इतिहासकार हैं जो परम पावन जी के जो कैंपेन उसको भी सपोर्ट करते हैं और भारत रत्न आपको प्राप्त हो उसके लिए बात करते हैं। तो मैं गोपाल गांधी जी से और अनुरोध करता हूँ, तो ये जो कि गांधी जी के भी ये नाती हैं, तो वो भी कहते हैं कि आपको भारत रत्न मिले। तो वो आपका प्रश्न है। तो परम पावन दलाई लामा जी आपके समक्ष यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तो मेरा एक प्रश्न है, एक प्रकार तो उसके साथ प्रार्थनाएं भी हैं, और मैं एक प्रकार से ईश्वर को मानता भी हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ। और कुछ तो मैं कभी कभी जब मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करता हूँ, बौद्धिकता का उपयोग करता हूँ, तो थोड़ा कन्फ्यूज भी होता हूँ। और कभी कभी तो जब मैं करुणा और अहिंसा को देखता हूँ, इन दोनों कुछ चीज़ों को मैं विश्वास करता हूँ और मुझे बताया भी गया, इसको मानना है, सीखना है। तो बड़ी शक्तियों के द्वारा इनको हरा दिया जाता है। एक प्रकार अक्सर मैंने देखा है इसका दमन होता है, सत्यता का दमन होता है। तो हालांकि इसका जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कभी कभी फ्रस्ट्रेट जैसे हो जाते हैं, ऐसी शक्तियाँ आती हैं, ऐसे इसको दबाते हैं। तो मैं कभी कभी इससे हराया जैसा पाता हूँ। तो मैं आपका एक प्रकार से मार्गदर्शन चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति हो तो क्या करना चाहिए। We must utilize human intelligence. तो मैंने पहले ही कहा कि हमें जो हमारी प्रज्ञा है, जो मानव प्रज्ञा, उसका उपयोग करना चाहिए। Oneself full of compassion, full of concern of other तो people. अपने आप में
जो दूसरों के प्रति पूर्ण रूप से करुणाशाली व्यक्ति रहना चाहिए, is totally against that. और कभी कभी उसी के साथ साथ लोग इसके विपक्ष में रहते हैं, विपरीत रहते हैं। Create sort of motivation, say, out of compassion, out of concern of their well-being. तो कभी कभी वो अपने जो दूसरों के जो हित है उसको भूल जाते हैं। तो हमें यही कोशिश करना चाहिए कि दूसरों के हित के लिए विचार रखें। May need utilize more wrathful method. तो कभी कभी आपको किसी को समझाने के लिए तो एक प्रकार से अलग अलग आपके रूप धारण करने पड़ते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म में अगर देखें तो कुछ जो डेटीज़ होते हैं उनके भी आप चेहरों को देखें, उनको उनके तरीक़ों को देखें, Stop that. तो अलग अलग उनके रूप होते हैं। Some तो उसी kind of प्रकार से more wrathful method to तो stop कभी that. कभी हमें कुछ चीज़ें कठिन रूप में अपने अपने हाव भाव को बदलने की आवश्यकता So रहती है। that no, तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये जो एक प्रकार से आप कभी कठिन रूप या इस प्रकार से अपनाएं तो वो आप एक प्रकार से ईर्ष्या, sense of concern, जलन की वजह से, क्रोध की वजह से कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। करुणा की वजह, दूसरों के करुणा की वजह से वो लोग ठीक हो सकें, इसलिए आप अपने रूप को धारण करते हैं। to stop. तो ये कोशिश रहती है कि जो बुराई है वो बुराई नष्ट हो सके। Regarding religion, तो धर्म की जहाँ तक अगर आप बात करें और ख़ास करके जो भारतीय परंपरा में देखें, motivation, बौद्ध धर्म के बारे में देखें तो बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि आपका उद्देश्य होना चाहिए। some gift, अगर आपका जो मोटिवेशन गलत है और आप मुस्कुरा करके दान देते हैं तो गलत बात हो जाती है। अगर आप मदद करना चाहते हो cases, if necessary, little bit sort of wrathful way. तो अगर आप कभी किसी को हित कर रहे हो, अगर उस समय कभी आपको थोड़ा सा आपका रूप बदलना पड़े, रौद्र रूप पे करना पड़े, लेकिन ये लगे कि इससे लंबे समय तक उसका हित हो सकता है, तो अच्छी बात है। Something. The quantum physics, see, judging their sort of explanation, तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार से अगर आप देखें appearance and reality. उसके हिसाब से कहा जाता है कि जिस चीज़ को हम देख रहे हैं और जो वास्तविकता होती है उसमें अंतर होते हैं। Sometimes something negative. But और कभी कभी जिन चीज़ों को देखते हैं तो वो नकारात्मक चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तविक ऐसी बात नहीं होती है। जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं वो नकारात्मक हो, ऐसी बात नहीं है। appearance, और चीज़ों को देखना और वास्तविक होना उसमें फ़र्क होता है। much depend on mental projection. तो हमारी जो वास्तविकता है वो जो हमारे मन है, चित्त, उसके आधार पर परखनी चाहिए। The तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी ऐसा ही कहा जाता है। तो भारत के जो एक बहुत बड़े विद्वान हुए, जो वैज्ञानिक हुए, तो राजा रमनन, तो उन्होंने कहा था, एक बार मुझसे कहा था कि जो क्वांटम फिजिक्स है वो पाश्चात्य देशों में in India, एक प्रकार से नई है और भारत में लगभग 2500 वर्ष पहले ही यहाँ पर इसका विकास हो चुका था, ऐसा उन्होंने कहा था। और ये बात सही भी है। they explain तो जब क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिक लोग जब इसकी व्याख्या करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, तो कभी कभी ये मजाकिया भी लगता है। listen, तो जब वो व्याख्या इसके करते हैं तब मैं अच्छी तरह से सुनता हूँ। और तो कभी कभी मेरे मन में ये भी विचार आता है कि जो वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं उनसे तो मैं ज़्यादा ही जानता हूँ, जो क्वांटम फिजिक्स उसको ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि हम लोग तो रोज़ इसका अभ्यास करते हैं। वास्तविकता क्या है, सत्यता क्या है, उसका रोज़ हम परीक्षण करते हैं। negative emotion. तो जो भी हमारे नकारात्मक विचार हैं वो ज़्यादातर जो बाहरी दिखावा है, जो चीज़ों को देख रहे हैं, उसकी वजह से आते हैं। Not like the appearances. So therefore, तो जब आप इनकी गहराई में जाएंगे तब वो उस प्रकार से नहीं होगा जैसा आप देख रहे हैं। all the appearances, things objectively exist. Then तो हमें ऐसा लगता है कि सब चीज़ें स्वभाव से सिद्ध है, तो उसके प्रति हमारी एक लगाव आता है, उसमें तृष्णा जागृत होती है, अच्छाई के प्रति लगाव होता है, बुराई के प्रति गुस्सा आते हैं, और फिर जब कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है तो उसके प्रति और ज़्यादा हमको क्रोध आता है।
according ये- to reality. So the reality, every human being, लेकिन वास्तविकता including ऐसी नहीं our होती है। enemy, or even तो हर एक व्यक्ति को आप देखें, यहाँ तक कि जिसको आप दुश्मन भी मानते हैं, one peace, तो दुश्मन जिसको आप मानते हैं, शत्रु मानते हैं, वो भी सुख चाहता है, सुख की कामना करता है। or compassion. उन सभी को हमारे करुणा की भी आवश्यकता है, उनको भी हमारे प्रेम की, स्नेह की आवश्यकता है। And reality. तो इसलिए जो देखा जा रहा है और जो वास्तविकता है, उसके प्रति अंतर हमें रखना चाहिए, समझना चाहिए। Due to certain sort of reason, temporary, not the reality. The reality is still human being, still तो sentient. जो वास्तविकता है, तो जो हम शत्रु हैं, Smile. तो उनको ये शत्रु हैं, वास्तव में ऐसी बात नहीं देखना चाहिए। तो सत्यता तो यही है कि सभी लोग सुख चाहते हैं, Emotion. वो चाहे कैसे भी हों, उनको सभी को सुख कामना करते Chinese हैं। student तो मेरे कुछ मित्र, कुछ चाइनीज जो लंदन यूनिवर्सिटी में जो अध्ययन कर रहे हैं, जो चाइना के हैं, have the view. तो उन्होंने ऐसा शोध किया है कि जो क्वांटम फिजिक्स के जो छात्र हैं, जो इसका अध्ययन करते हैं, Also grasping. तो उनका जो एक प्रकार से लगाव है, Grasp. नकारात्मक जो भावना है, वो कम हुई है। उनका क्रोध है, वो भी कम हुआ है। On that basis, too much sort of distinction, we and they. और मैं और वह, मैं और वे, जो ये विचार, उसमें कमी आई है। So they have their kind of, sort of experiences. So more because of that. Tranquility survey. तो Equal. Neutral. तो इनको एक प्रकार से समान रूप में देखना चाहिए। Okay. Your Holiness, our next guest is social and women's rights activist, education तो अगले जो writer. मानवाधिकार और सामाजिक कार्य करने वाले, Close to your heart is that her work and aspirations have sought to nurture a deeper understanding of authentic Islam. That's something तो जो that कि is very close जो to इस्लाम your के heart, and you have taken बारे में proper कार्य initiative करती हैं। in this. So it's over to you, Sayyid Hamid ji. तो जो साइदा हमीद, इनका प्रश्न है। Ka. Or Dirbe. Shivade. तो उनका प्रश्न है कि आजकल जो मुस्लिम लोग हैं, उनको आतंकवादी के रूप में देखते हैं और उन पर एक संदेह की, हमेशा उनको एक संदेह के रूप में देखते हैं। तो भारत में लगभग जो 20 करोड़ के आसपास मुस्लिम हैं, तो भविष्य में वो क्या कर सकते हैं, वो कैसे हो सकते हैं, उनका क्या मार्ग होना चाहिए, क्या रास्ता होना चाहिए। The discourse with which you began today's conversation. Your Holiness, Islam in the eyes of the world today is synonymous with terrorism. Muslims are looked at with suspicion and aversion. Post-partition, all that my elders struggled for has lost its meaning. It's a matter of life and death, Your Holiness. What is the way forward for the 200 million Muslims of this country and indeed the many, many more Muslims across the world? Thank you very much, sir. Thank you. तो केवल भारत ही नहीं, विश्व के मुसलमानों के The Indian क्या Muslim, रास्ता होना चाहिए। I never heard, as I mentioned, तो मैंने जैसा कि पूर्व में कहा कि कभी भी मैंने ऐसा नहीं सुना between कि भारत के जो मुसलमानों के Shia. शिया और सुन्नी, इन दोनों के बीच में So now नकारात्मक विचार हों, झगड़े हो रहे हों, तो ऐसा मैंने नहीं सुना। their faith, Sunni. तो हम उनकी श्रद्धाओं को तो नहीं बदल Now सकते हैं, important is we should एक दूसरे की जो आस्था है उसको तो नहीं बदल सकते हैं, develop more. लेकिन हमें जो हम लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए, उनके साथ साथ जो नज़दीकी संबंध बने, उनके साथ साथ एक अच्छा रिश्ता बने। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारत में जो शिया और सुन्नी हैं, उनमें आपस में कोई दिक्कत नहीं है, आपस में कोई बैर नहीं है। Muslim country, you see the problem. लेकिन दूसरे देशों में देखा जाए तो आपस में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, Indian Muslim उनका सामंजस्य नहीं बैठता है। should develop more wider contact with other Muslim. तो भारत के जो मुस्लिम हैं,
तो उनको दुनिया के अन्य मुसलमानों के साथ एक अच्छे संबंध बनाने चाहिए, कांटेक्ट बनाने चाहिए। तो मेरे मित्र जो लद्दाखी मुस्लिम मित्र हैं, तो उनके साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। तो उनको मैंने एक बार कहा कि उनको एक सभा का आयोजन करना चाहिए। पहले तो राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिए, भारतीय मुसलमानों के बीच में संवाद करना चाहिए, जो शिया और सुन्नी उनके बीच में एक वार्ता करनी चाहिए। We already have that kind of meeting. At that time, तो हम लोगों ने कुछ ऐसे कार्यक्रम का आयोजन भी किया। तो उसमें ईरान से भी कुछ मुस्लिम मित्र आए। तो हालांकि ऐसे समय में इस कोरोना की वजह से ये दोबारा से एक कार्यक्रम नहीं हो सका, तो इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम करने का विचार बना। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जिस पे कि जो मुस्लिम लोगों के बीच में जो एक प्रकार से झगड़े होते हैं, उनमें कैसे सामंजस्य बन सके, संवाद कैसे स्थापित हो सके। तो इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। तो भारतीय, जहाँ तक मुसलमानों की बात है, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, तो इनको एक शुरुआती तौर पर एक कोशिश करना चाहिए कि विश्व के जो 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 हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनके साथ में संवाद बनाएं, अच्छे एक संपर्क करें। तो फिर एक प्रकार से उदाहरण बन सकता है। भारत के मुसलमानों के द्वारा अगर ये कदम उठाया जाए तो एक अच्छा उदाहरण बनेगा। तो भारत में जहाँ तक धार्मिक सद्भाव है वो काफ़ी अच्छा है। और तो इसमें भारतीय जो मुस्लिम हैं वो भी एक प्रकार से अपना एक दिखा सकते हैं, विश्व के मुस्लिम लोगों को दिखा सकते हैं, जिनकी संकुचित विचारधारा है उनकी विचारधारा को बदल सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हम साथ साथ रह सकते हैं। तो आप भारत के मुसलमान लोगों को देखें तो वो बचपन से एक दूसरी परंपरा को समझ रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, कभी झगड़े झंझट नहीं होते हैं। तो कोई समस्या नहीं है, मैंने तो कभी नहीं देखी। Okay, I think Indian Muslim can make certain contribution. और तो मुझे लगता है कि भारतीय जो मुस्लिम हैं वो निश्चित रूप से कुछ अपना सहयोग कर सकते हैं और अपना एक सकारात्मक छाप भी छोड़ सकते हैं। After the terrorist attacks in New York, you had spoken out in support of a तो deeper परम पावन जी, understanding by other आपने जब communities यूएसए में of टेरर Islam, अटैक हुआ था which was being तब उस समय perceived आपने as a कहा था source of कि terrorism and कम्युनिटी को violence. समझना चाहिए And I think there's कि अहिंसा के anxiety जो हिंसा रूपी that रूप है Saida उसको ji नहीं is अपनाना doing चाहिए। on the misunderstanding about Islam. And तो your सायदा efforts, जी भी इस personal पर efforts to try कार्य and कर bridge रही हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो गलत विचार हैं, तो आप भी परम पावन जी इस पर अपनी बात रख रहे हैं कि जो लोगों का गलत सोच बना हुआ है, मुसलमानों के बारे में गलत सोच बनी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो आप जैसे कि जिनको आतंकवादी कहा जाता है, तो वो एक व्यक्तिगत लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो हमारे बौद्ध धर्म में देखा जाए तो बौद्ध धर्म में भी ऐसे खराब लोग हैं, यहूदी धर्म में भी हैं, हिंदू धर्म में भी हैं। सभी धर्मों में कुछ न कुछ खराब लोग होते हैं, ये सामान्य बात है। We cannot sort of conclude that whole tradition. लेकिन हम एक कुछ व्यक्तियों की वजह से पूरी परंपरा को, पूरी जाति को आप उसी रूप में मान लें, ये नहीं कह सकते, ये गलत बात होती है। Deeper level, wider perspective, then आपको गहराई से सोचने की ज़रूरत है, अलग दृष्टिकोण से चिंतन करने की आवश्यकता है। I know this is from childhood Muslim. तो मैं बचपन से मुसलमान लोगों को जानता हूँ, मेरे संपर्क में रहे हैं। After I think some Muslim from Ladakh reached Lhasa. तो लद्दाख से कुछ मुस्लिम लोग लासा आए Fifth Dalai Lama provided और land पांचवें for their दलाई लामा ने उन लोगों के जो मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन भी दी थी। Muslim, small Muslim community. तो जो छोटी मुस्लिम जो समुदाय है, लासा में जो छोटा सा समुदाय था,
वो हमेशा हमारे जो भी कार्यक्रम होते थे, जो सरकारी कार्यक्रम होते थे, प्राइवेट कार्यक्रम होते, उस सब में वो लोग पार्टिसिपेट करते थे, सहभागिता करते थे। then a positive responsibility. तो अगर आप हाथ बढ़ाते हो You तो निश्चित रूप से कोई संभावना बनती है। remain Kasuda, suspicion or negative. और अगर आप हमेशा संदेह करते रहोगे, नकारात्मक विचार रखोगे, तो समस्याएं होंगी। Basically, तो अगर हाथ अच्छी तरह से बढ़ाओगे, आप दोस्ती का भाव बढ़ाओगे, तो निश्चित रूप से लोग समझेंगे, आपके तरफ भी उनका विचार I बदलेगा। think in Lhasa, there are Muslim community, but no record Muslim तो लासा में कुछ मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई भी ऐसा सुनने में नहीं आया अभी तक कि मुस्लिम लोगों ने कभी झगड़े किए हों। Lhasa, very peaceful. और जो लासा में छोटी सी ये मुस्लिमों का समुदाय है, बड़े सुख शांति से रहे हैं। You see, they Kasuda, they found go to Muslim. और बहुत सारे जो हमारे भिक्षु लोग थे, तो वो लोग मुस्लिम परिवार में जाते थे, Uh, और जो मुस्लिम लोग, जो व्यवसायी लोग होते थे, so तो जो तिब्बत से भारत में जब आते थे, information about Mahatma तो Gandhi ji, about जो महात्मा गांधी जी की और अन्य लोगों के जो सूचनाएं हैं, so it's a Tibetan जो भारत में सूचनाएं जो चल रही होती हैं, जो संवाद चल रहे होते थे, एक प्रकार से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे होते थे, तो उस समय वो लोग लेकर के आते थे। Muslim, yes. और मुस्लिम लोग जो है बिजनेस करने के लिए भारत आते थे, तिब्बत आते थे, तो उन लोगों एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान भी होता था। Friend of yours, Shyam Saran, who served as India's तो foreign अगला secretary. प्रश्न, And, आपका also प्रश्न जो है श्याम सरन, जो भारत के विदेश सचिव भी रहे हैं, pilgrimage to different आपके traditions मित्र that रहे you, हैं, and the respect for them that you have और आपने embodied. And he has often argued that he is pro-Tibetan and pro-Dalai Lama because he is pro-India, and so he's pro both Guru and the Chela. Sham. तो आपके वो श्याम सरन जी आपके अच्छे मित्र हैं। Thank you, Your Holiness, for your constant blessings. I'm really privileged to तो have परम this पावन जी, आपके निरंतर आपने हमको listening to you and आशीर्वाद also प्रदान to किया pose, है, उसके लिए some आपको बहुत question बहुत to you. धन्यवाद। You have often तो मेरा said, and you कुछ प्रश्न repeated, है, today that while it और is आप very आज important आपने for us कई बार to कहा है maintain physical कि hygiene and we pay a lot of कि जो attention मानसिक to maintaining physical जो hygiene, स्वास्थ्य है but और स्वास्थ्य perhaps जो we don't शारीरिक pay स्वास्थ्य much है, इनके attention बारे to में our आपने emotional बात की है, hygiene or to our और mental खास hygiene, करके that it जो is हमारे as important भावनात्मक विचार हैं, to भावनात्मक keep our जो minds clean स्वास्थ्य as है, to keep our वो bodies कैसे होना चाहिए, और clean. हमारा जो And मन है it is वो true भी that साफ होना perhaps चाहिए। through a और ये बात सही है जो आप practice कह रहे हैं कि of बिल्कुल meditation, अच्छी बात है। you are तो able ध्यान के to अभ्यास करके try and और cleanse your ध्यान mind. के द्वारा My question और is that निश्चित रूप while से the way आप अपने for मन an को संतुलित individual कर seems to सकते be हो। very clear, how do we ensure the cleanliness तो of आपका mind क्या, for the entire community? कैसे कह सकते हैं कि How do we जो पूरा ensure the समाज cleanliness है, of mind for उस entire पूरे समाज country, के of चित्त course, को, the मन को entire कैसे साफ world? कर सकते हैं, Because पूरे what you are able देश to के do लोगों का मन को कैसे बदल individually, सकते you are हैं, not able फिर उसके to बाद पूरे विश्व translate के लोगों that का मन में into परिवर्तन a कैसे आ सकता community है। sort of practice. It is difficult to see how we can make a difference. We have, for example, in India today, this Swachh तो भारत में Bharat जैसे campaign. कि भारत Keep में India एक clean. स्वच्छ भारत But how अभियान do चल we रहा है कि make भारत को स्वच्छ certain रखा that जाए। the minds of Indians also तो are उसी cleansed प्रकार from से sources? जो भारतीय Thank लोगों you, के जो Your मन Holiness. हैं वो स्वच्छ कैसे हो सकें। 다르게 samkom chöden di chizo da mikela 열기 전에 돼야 지소를 별당티. as I already mentioned the 1,000-year-old India's tradition of ahimsa and the तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है कि भारत की हजारों वर्ष प्राचीन जो परंपरा करुणा और मैत्री की जो व्यवस्था है, उसको जो हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा प्रणाली में धर्मनिरपेक्ष के रूप में उसको रखना चाहिए, डालने की आवश्यकता है। now this for the time being this illness kasa timi kasa 코로나 तो आज के समय में जो कोरोना वायरस की जो समस्या है, दिक्कत है, illness this problem you see, as soon as this how say this
reduce. और जैसे ही ये कम हो जाती है अर्थात ख़त्म हो जाते हैं तो मेरा विचार है और मेरा एक प्लानिंग भी है Firstly, now here my public कि तो पहले कोशिश है कि मैं यहाँ भारत धर्मशाला में जो समुदाय को अपना प्रवचन दूँ, फिर उसके बाद दिल्ली जाऊँ और दिल्ली में विद्वानों के लोगों के साथ में संवाद करूं और संवाद यही हो कि जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें धर्मनिरपेक्ष माध्यम से जो अहिंसा है, करुणा है, इसको कैसे लागू किया जा सके, कैसे लोगों को सिखाया जा सके। और जालंधर जो परंपरा है वो एक प्रकार से एक बहुत ही बड़ा एक रिसोर्स के रूप में है कि किस प्रकार से हम अपने क्रोध को, घृणा को, ईर्ष्या को इसको हम टैकल कर सकें और कैसे हम जो हमारे करुणा रूपी जो अच्छे विचार हैं उसको अपने अंदर उजागर कर सकें। तो हालांकि ये जो विचार हैं ये बौद्ध ग्रंथों से आए हैं तो इनको आप बौद्ध धर्म या धर्म के रूप में न मान करके एक जो इंटेलेक्चुअल है उसके रूप में मानना विचार इसको समझना चाहिए। तो इनको हम कैसे अपनी प्राचीन जो विद्या है और आधुनिक विद्या है इनके साथ साथ हम जोड़ सकें, इसके बारे में मेरा विचार है। और जो आज विश्व की जो सत्यता है उसको साथ साथ कैसे हम रख सकें और मैं इसको प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुक भी हूँ। और इसके भारत के अलावा भी दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ। भारत में अन्य जगह पर भी यही कोशिश है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य हो सके और हमको इसको एक उपयोग करने की आवश्यकता है। और एक अच्छी तरह से हम कैसे इसका आयोजन कर सकें, लागू कर सकें। There is no other alternative. तो इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और अगर आप पाश्चात्य को देखते हैं, अमेरिका इत्यादि को देखें, अफ्रीका को देखें तो उनसे भी एक उम्मीद नहीं जगती है। Western European countries and then Eastern the Eastern countries. I think not much idea. तो दूसरे देशों में इतने इसके बारे में विचार भी नहीं है। तो चाइना के बारे में अगर हम बात करें, चीन के बारे में बात करें तो पिछले कुछ दशकों में उसमें कुछ परिवर्तन आए हैं। तो अभी आप देखें कि चाइना में जो बौद्धों की संख्या वो काफ़ी बढ़ रही है। तो लगभग 40 करोड़ के आसपास बुद्धिस्ट लोग हैं, लेकिन उनके पास जो बौद्ध धर्म पढ़ने का और ये ग्रंथ पढ़ने का उतना अवसर नहीं है, ये जटिल हैं। So now, I think India should make some effort, and for that, as I mentioned earlier, तो भारत को कुछ अपने प्रयास करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। to organize some. तो मैं इन बातों पर, इन चीज़ों पर विचार करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, बहुत उत्सुक हूँ कि जो शिक्षाविद हैं, विद्वान लोग हैं, उनके साथ साथ बातचीत हो सके। तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है कि जो प्राचीन विद्या उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है और आधुनिक जो शिक्षा है उसके साथ साथ जोड़ने की ज़रूरत है, जो किस प्रकार से शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ हो सकें। तो अगला प्रश्न अरुणा रॉय से है, श्रीमती अरुणा रॉय से। तो जो कि एक एक्टिविस्ट हैं, RTI इत्यादि में कार्य करते हैं। Aruna and her husband in Telonia at the Barefoot College some years ago, and she. तो ये तेलोनिया में ये और इनके हस्बैंड गए थे। तो ये जो 9 वर्ष की तब से आपको जानती हैं। Rajasthan. No, my favorite. No.
그래. 총습 오케이. 낚시 다들. Yes, Aruna, go ahead. Unmute yourself, Aruna. Unmute yourself. Your Holiness, it's an honor to be with you, even though virtually. तो परम पावन जी We आपके met at समक्ष Gresham College. You वर्चुअली spent मिलने 24 hours, and I जो had अवसर the प्राप्त honor of हुआ है serving you, बहुत in खुशी हुई। 2011, if you remember. तो These तो are very आपसे difficult हमें मिलने times, का अवसर भी Your प्राप्त हुआ Holiness, था। both in India तो and अभी globally. के समय में As बहुत ही Saida was मुश्किल का saying, समय है। there is so much hatred and there's so तो much सईदा जी ने जैसा कहा कि inversion आज के of समय में बहुत truth and justice, बुराइयां where हैं wrong और is अन्याय portrayed हैं, as right समस्याएं हैं, and right is और जिस पे जो persecuted. सत्य का कोई Secularism is ध्यान, वो also एक मूल्य seen नहीं with है। very और जहाँ with तक criticism. So धर्मनिरपेक्ष being secular is no की बातों longer को देखा जाए, वो freedom उसकी in भी India. निंदा हो रही है। How do we तो deal with this इसमें भारत में environment एक when प्रकार we're से dealing देखा with जाए स्वतंत्रता poverty, नहीं है। with तो भारत में इन with चीज़ों से कैसे differences, with निजात पाया जा hostility, सके। and with so many other issues? How do we address तो the भारत में बहुत environment सारे and ourselves in समस्या this हैं context, Your और Holiness? बहुत सारे जो पर्यावरण की बातें हैं, अन्य चीज़ें हैं, उनके प्रति कैसे हम कर सकते हैं। जो सत्यता की बात है उसके प्रति हम कैसे कार्य कर सकते हैं। I have the feeling. So today's world, following the previous century, तो आज का मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय जो है पूर्व का जो समय था उसमें कहीं ना कहीं उसकी छाप छुटी हुई है। then तो हमारी जो प्रज्ञा है, जो ज्ञान है, lot of killing, तो आप देखो कि प्राचीन जो जो पूर्व की शताब्दी थी उसमें बहुत सारी समस्याएं थीं, बहुत सारे झगड़े, हत्याएं हुई। is simply people's mind simply copy. और जो समस्याएं हैं वो लोगों के मन की वजह से होते हैं, और समस्याएं जो बीते हुए समय की वजह से आते हैं, पास्ट की वजह से आते हैं। I may use some kind of this revolutionary thinking, something तो different. हम लोगों को एक प्रकार से क्रांतिकारी विचार की पैदा करने की आवश्यकता है। Follow the past sort of way of life, way of thinking. तो हमें जो प्राचीन जो विचार रहे हैं, जो हमारी जो पुरानी सोच है, उसी को लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो परिस्थितियां बदली हैं, आबादी भी बहुत बढ़ी है, बहुत सारी समस्याएं आई हैं, Rich and poor. और अमीर और गरीब का जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। तो आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, ये समस्याएं हैं। इसके बारे में हमें गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। What's the reason in previous time these problems? और तो प्राचीन समय में इसकी क्या वजह थी, ये समस्याएं क्यों आई, To overcome हमें अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है, uh, और इनसे परे जाने की आवश्यकता है। जो प्राचीन समय में हमारी संकुचित विचारधारा थी, उससे हमें again I पार जाना है। वो कैसे जा सकते हैं? वो शिक्षा के द्वारा जा सकते हैं। day as I और मैं और वे इस प्रकार का जो विचारधारा है, इसको त्यागने की ज़रूरत है। sense of oneness of 7 तो हमें जो 7 अरब के आसपास लोग हैं, उनके एकता के रूप में देखना है। different of color, तो लोगों के अलग अलग धर्म हैं, लोगों के अलग अलग रंग हैं, अलग अलग राष्ट्रीयताएं हैं, ये दूसरे स्तर पर होना चाहिए। तो मुख्य जो पहली हमारी जो प्रधानता है वो यही होनी चाहिए कि हम सभी समान हैं, एक हैं। sometimes I feel the children, young child, तो कभी कभी मुझे लगता है, और ये ऐसा मुझे महसूस भी होता है कि जब जो बच्चे जिन्होंने अभी स्कूल में प्रवेश नहीं लिया है, religion, different national, तो उस समय वो ज़्यादा दूसरे धर्म, दूसरे नागरिकता इत्यादि के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एकता के साथ रहते हैं। once they join education, और फिर उसके बाद जब वो शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं, स्कूल वगैरह में चले जाते हैं, also they thinking different religion,
different nationality, और फिर उसके बाद अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग धर्म, इनके इत्यादि के बारे में विचार करने लगते हैं। और अमेरिका इत्यादि में देखें तो धर्म के बारे में और लोगों की जो 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 रंग भेद उसके बारे में, nature. तो ये स्कूल में आकर के इतने सारे अंतर उनको बता दिए जाते हैं, सिखा दिए जाते हैं। उससे पहले ये चीज़ें नहीं होती हैं। By nature, sense of oneness there. Now education, तो बच्चों में जो स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो एकता के विचार और ये जो जो सभी लोग हैं उनके एकता के रूप में विचार रहते हैं। और हम सभी लोग जो भी हैं जो अपने सुखी जीवन को चाहते हैं, और शिक्षा ही एकमात्र एक की फैक्टर है, मूल मंत्र है। you see, we simply follow the तो आज की जो समस्या है तो वो ज़्यादातर हम लोग प्राचीन जो व्यवस्था है, प्राचीन जो संकुचित विचारधारा, उसको हम पकड़े हैं। इस वजह से ये समस्याएं आ रही हैं। तो आज के समय में एक नई समस्या है या नई परिस्थिति है, तो उसको आपको समझना चाहिए। और उसके ऊपर भी जो पर्यावरण की समस्या है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है, इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। serious or say the तो वैश्विक जो ग्लोबल वार्मिंग है, world change, जो पर्यावरण की समस्या है, उसको एक हमें देखने की ज़रूरत है। then विश्व परिवर्तन हो रहा है, देश विश्व में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। तो आप पिछली शताब्दियों को देखें और सोचने की विचारने की जो चीज़ों को देखें, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। the past sort of say way of thinking, way of life. तो हमें जो प्राचीन विचार था उस प्रकार से चलने की ज़रूरत नहीं है, हमें नई सोच विचार बनाने की आवश्यकता है। तो आज का अंतिम प्रश्न मिस्टर प्रकाश आमटे, और आपके जो मित्र बाबा आमटे, उनका प्रश्न है। तो प्रकाश आमटे जो हर रोज़ जो टहलने जाते हैं तो 2 लेपर्ड के साथ जाते हैं। My question is, तो धन्यवाद परम पावन जी। Unmute yourself. Unmute yourself, Prakash bhai. Okay. thank you, His Holiness. My father Baba had studied many religions, but his words तो are मेरे humanity. पिताजी जो उन्होंने कई धर्मों को पढ़ा है, Considered sexuality, procreation as human, natural and necessary. तो जो As ancient as it is, जो मानवता है ना, जो प्राकृतिक ज़रूरतें हैं इत्यादि के बारे में पढ़ा, strengthen and accentuate तो उन्होंने जो एक प्रकार से boundaries. जो जाति भेद रंग इत्यादि को दूर करने के लिए उन्होंने बातें कही हैं। तो लोग इसको कैसे रोक सकते हैं? इनसे लोगों को कैसे बचा जाना चाहिए? जात प्रथा इसको कैसे बच सकते हैं? Yes. Now, as I already mentioned, we also say, as I mentioned earlier, when we were young, you see, तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जब हम छोटे होते हैं, now gradually बच्चे होते हैं, तो उस समय अंतर की भावना नहीं होती है। different countries फिर and फिर धीरे धीरे अन्य अन्य जो रंग भेद विचार, स्त्री पुरुष, जो देश और दूसरा देश, इसके अंतर हमारे अंदर आ जाते हैं। education, तो ये सारी जब हमें ऐसी शिक्षाएं दी जाती हैं, बताया जाता है, हमको सिखाया जाता है कि फलां फलां चीज़ें होती हैं, emphasis about past negligence, and due to that, now today we face some unnecessary problem. तो आज के समय में जो अनावश्यक समस्याओं से हम घिरे हुए हैं, We can change these things. और इनको शिक्षा के द्वारा बदला जा सकता है। Is education. और सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारी शिक्षा। The religion, और कभी कभी जो धर्म है, some sort जहाँ तक जो पंथ हैं, तो उनके भी हमारे जो समस्याएं हैं और जो अंतर हैं उसमें उनका एक प्रभाव रहता है, जिसमें स्त्री पुरुष, जाति, धर्म, रंग भेद इत्यादि पर इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। earlier, the secular way of thinking, then these are तो बेशक मैंने पूर्व में कहा कि धर्मनिरपेक्ष के जो विचार होना चाहिए, और रंग भेद इत्यादि ये प्राचीन बातें हैं,
ये पुरानी बातें इनको छोड़ने की आवश्यकता है। तो शिक्षा एक मूल कुंजी है, मूल मंत्र है। I am very, very eager go to Delhi and some तो जैसा कि मैंने अभी कहा था कि मैं दिल्ली आना चाहता हूँ और जो प्रोफेसर्स लोग हैं, शिक्षाविद हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनके साथ वार्ता करना चाहता हूँ। like that. Okay. 보암대부 Admission. Oh, Ande. Yes. Oh. As soon as I received the Nobel Peace Prize, oh, तो जैसे ही मैंने नोबेल पीस प्राइज प्राप्त किया था, तो उसी समय money, तो जो मुझे धनराशि मिली थी, तो मैंने ही बाबा आमटे के जो संस्थान को देने के निर्णय लिया था। ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। okay. Thank you, Your Holiness. On behalf of तो परम पावन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग आपके साथ रहकर के 7 लोगों ने आपके साथ साथ संवाद किया और दुनिया के बहुत सारे लोगों ने आपको सुना, देखा, आपने हमें समय दिया। तो मैं अपने आप को even though you've said that prayer isn't essentially तो कहते हैं कि प्रार्थनाओं की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो आपके सब की तरफ से मेरी प्रार्थना है। तो आपके दीर्घायु के लिए हैं। आप दीर्घायु को प्राप्त रहें, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। To you we offer our prayers with a fervent devotion that Tenzin Gyatso, protector of the land of snows, live तो for परम पावन 100 दलाई लामा years. जो कि हिमभूमि में उसके एक प्रोटेक्टर के रूप में माने जाते हैं, आप हजारों वर्षों तक रहें और आपके जो इच्छाएं हैं वो बिना किसी बाधा के परिपूर्ण हों, ऐसी हमारी आप सबकी तरफ से प्रार्थना है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Oh, as I mentioned, I'm thinking, looking forward once or तो जैसा कि अभी मैंने कहा था कि तो भविष्य में मैं मीटिंग के बारे में सोच रहा हूँ, दिल्ली, चंडीगढ़ या जहाँ भी हमें अवसर मिले, तो वहाँ पर मैं जैसे विचार या संगोष्ठी में शामिल हो सकूँ, ऐसे विचार कर रहा हूँ। तो जब ज़्यादा समस्याएं हों, तो उस समय हमें एक गंभीर रूप से विचार करने की ज़रूरत है। तो ये नहीं है कि हमें इतना नहीं है कि हाँ ठीक है, ये मेरे जीवन का अपना तरीका है, तो ऐसा सोचने की हमें ज़रूरत है। हमें दिन रात चिंतन करने की ज़रूरत है, विचार करने की आवश्यकता है। तो जैसे कि सूरज, जो समान सूरज है, समान चंद्रमा है, तो उनके बारे में देखा जाए तो वो भी परिवर्तित होते हैं, वो भी उसमें भी परिवर्तन आता है। तो हम लोग भी मनुष्य हैं, अलग अलग, तो मनुष्य हैं, तो उसमें तो जो परिवर्तन होना चाहिए, परिस्थितियों में परिवर्तन होना चाहिए, नई एक सोच होनी चाहिए। तो मैं जो पाश्चात्य जो भौतिकवादी व्यवस्था है, उसका मैं एक प्रकार से प्रशंसा करता हूँ, अनुमोदन करता हूँ। मैं उसका एक प्रकार से एक सही मानता हूँ, लेकिन उसमें जो कमी है वो हमारे मानसिक जो मन है उसको कैसे स्वस्थ रखा जा सके, भावनाएं कैसे स्वस्थ रखी जा सकें, इसकी कमी साफ झलकती है। तो इसलिए इस देश भारत के लोगों को और ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है, ये मेरा विचार है। तो इसके साथ साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।